Hello, guys, welcome to the 12th episode of the Invisible String podcast, where we share, where we figure out help where we figure out human experiences together. so Yeah. hello guys. Hi. How are you? तो अभी हमारे साथ बहुत फनी हुआ. हम Amazing. ऑलरेडी शूट करना शुरू हो चुके थे और हमने कुछ बहुत ही मस्त बोलना शुरू कर दिया था, बट ऑब्वियसली Yeah. अब हमें उसको दोबारा शूट करना पड़ We रहा है. cooked, but yeah, but coming back, Yeah. circling back, what reheating we're the food. yeah, what we're gonna talk about today is that how important it is to like Get go out out of your comfort zone and like the fears that you face Yeah. while like getting out of your comfort zone. So अब I think अब बिल्कुल एक अलग स्टैंड आएगा कॉन्वर्सेशन में. I think comfort zone can be very different for a lot of people. Like जैसे what we were talking about, जो बात कट गई थी earlier was कि people who grow up with like chaotism and when they step out in the outer world and then they have to like adjust themselves to situations, I think it's easier for them because they never had a constant comfort. Yeah. With respect to the people who had like a comfort zone वाली चीज़ and मतलब if they have to grow up without it. अब जैसे अगर मैं chaotism वाली चीज़ बात करूँ कि अगर बचपन से तुम chaotism से गए हो and for example if you develop a coping mechanism of not sharing what you feel, Yeah. तो that will become your comfort zone. कि I feel very comfortable in not telling anybody in what I feel. Yeah. And to come out of it will be a tough job. And Yeah. obviously you will see things very differently in both of the perspectives. And in the same time, जो बंदा मान ले comfort zone के साथ हुआ है तो उसके लिए ऐसा होगा कि how to मतलब not tell anyone, मतलब how to not tell my friends or how to like not tell कि मतलब what I'm feeling or something. And you cannot always tell people what you feel and you cannot tell everyone what you feel. तो बहुत colliding से वो है कि मतलब the so called मतलब vibes जो हमें comfort word से आती है कि बहुत अच्छा. Yeah. But no, some हमेशा नहीं. people have comfort in habits that might not be right for them in the longer run or might be just a maladaptiveness जो कि मैं बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करूँगी, मेरे में है ऐसा. ये जो मैं एग्जांपल देके कूल बनाया खुद को, मैंने अपना ही एग्जांपल दिया है. और जैसे कन्फ्रंटेशन है मेरे लिए, लाइक दैट इज माई कंफर्ट जोन. लोगों को कन्फ्रंट ना करना, लड़ाई नहीं होगी, काम चलता जाएगा. बट फिर यही है ना, यू कैन नॉट डेवलप क्लोज रिलेशनशिप्स लाइक दैट. अगर तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है और तुम वो कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा. और इवन लाइक प्रोफेशनल, वैसे आई थिंक प्रोफेशनल सेटिंग्स में यू प्रोफेशनल में मेरे को कोई दिक्कत नहीं. दोस्तियों में होती है क्योंकि प्रोफेशनल में इट्स लाइक आई डोंट केयर अबाउट द अदर पर्सन्स ओपिनियन. तो आई एम लाइक कि मैं क्यों सहूं फिर. बट पहले तू नहीं करती था तो ये मतलब ओवर द ईयर तुझे वो आदत आई. बट पहले कन्फ्रंटेशन एज अ होल ही तुझे ऐसा लगता था कि नहीं बाय प्लीज डोंट टॉक टू मी. और फिर कॉलेज के एक सेमेस्टर में लोगों ने ऐसा कन्फ्रंट करवाया कि काफी कन्फ्रंट हो गया हमसे. तो हाँ, ये तो चीज मुझे भी लगती है. अब लेट्स कम टू व्हेन डिड यू फर्स्ट थिंक यू वर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आई थिंक कॉलेज में ही, जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हम सेकंड सेमेस्टर में है ना, जिस दिन तूने मुझे कॉल करके बोला बारिश हो रही है गीतिका कॉलेज आ जा, एंड आई हैड द फ्री विल टू चूज, क्योंकि तब मेरी बहन भी घर आ रखी थी, मैं सो के ही उठी थी. आई हैड द फ्री विल टू चूज टू स्लीप या कॉलेज जाऊं. नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. या एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय. जो मेरी बहन ने मेरे को काफी गालियां भी दी थी, बट यू नो इट्स फाइन. You know, we did something that day, which is called fun. Yeah. Which was nothing. Yeah. So मतलब हाँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजों में हो सकता है. मतलब you might think like stepping out of, और कभी कभी बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि sometimes I have stepped out of my comfort zone. I'm not realizing it. Yeah. But mid doing that task, I'm like, oh shit. I was not comfortable with this some time ago and now I'm like doing it. So
वो ऐसा पिंच मूवमेंट भी होता है कि ओ ओके आई जस्ट डिड Yeah. दैट, वैसे वाली चीज भी होती है. और बहुत बार ऐसा होता है कि इट कॉन्शियसली टेक्स यू एफर्ट टू कम आउट ऑफ Yeah. दैट थिंग. मतलब इट, आई फील लाइक इट हैज वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू इट. कि जैसे मतलब it definitely cannot be the same for everyone. Yeah. मतलब it can be हर very किसी का ugly comfort for zone all, अलग है, also yeah. for many people, and it can be very empowering, beautiful, strong, happy. मतलब I think Yeah. all kind of emotions are very And valid. like you stepping out of your comfort zone is not always going to turn out positive. Yeah, Like for if sure. when I confronted my friends and if they were not good friends, तो फिर Obviously for a but see, that's positive only, no? You get You to find out. you find out and you get to be around real people. yeah, So it's never not going to be वो, you know, yeah. nice or positive. बट अगर कंफर्ट जोन के माइंडसेट से बताते हैं, उस समय तो अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे तो यही लगता कि एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल आई कन्फ्रंटेड. बट तुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पे एक थॉट ये भी आ सकता है कि everything was fine until I confronted, but they were not willing to listen to my Yeah. side वाली चीज. वो तो इवेंचुअली तो आता ही है, बट आई थिंक इनिशियल नहीं, रिएक्शन initial- तो वही होगा. for sure initially. कि- और कहीं ना कहीं शायद एक वो भी आ जाता है कि रेजिस्टेंस नेक्स्ट टाइम हाँ, कन्फ्रंटेशन हाँ. वो करने से, क्योंकि मेरा ये नहीं है तो मैं वो नहीं कर पा रही. हाँ. बट मुझे समझ आ रहा है कि वो उस माइंडसेट से जैसे आया, Yeah. जैसे इफ द सेम थिंग इज अबाउट लाइक मी ओपनिंग अप, तो आई थिंक वो बहुत वैसा है कि shit, how do I do that? How Yeah. does that happen? Because How like on earth दोनों does चीज it में ना, happen? दोनों में इट्स लाइक बीइंग वल्नरेबल, एंड उस समय बहुत अरे वो लगता है. vulnerable तो तुम बन जाते हो, बट उसके बाद what you're worried about is कि shit, I did that and that can change things. Yeah. That is what makes you feel. और वही है, इसके भी बहुत सारे reasons है. For many people who are watching this, it might be very easy for them to confront, or it might be very easy for them to like share whatever they're feeling. Yeah. Or they might not feel कि oh shit, हम क्या कर रहे हैं. But that is the thing कि सब कुछ thought based है at the end of the day. सब कुछ behavior और experience based है. मतलब है एक सॉफ्टवेयर जैसा ही है सब कुछ, कि कहीं तुमको ज्यादा मेंटल एफर्ट लग रहा है किसी चीज से बाहर वो रखने में, बट कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि ओ नहीं, यहाँ तो काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी ज्यादा स्टोरेज Yeah. ले रही है कभी कोई चीज. आई थिंक काफी वैसा, मतलब अगर इसको एक मैकेनिक प्रोसेस की तरह समझ तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि कहीं तुम्हारे दिमाग को लग रहा है कि ठीक है, द मैकेनिकल पाथवे इज टू जस्ट गो स्ट्रेट, and someday you suddenly realize that oh, I have been going straight for too long, and Yeah. maybe I would not need to, you know, just move here and there and not just go straight. तो हाँ, I think वो बहुत वैसा है यार. बट आई फील लाइक एक बार तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलने लगते हो ना, तो यू वंस यू नो द फीलिंग ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आई फील लाइक जैसे मेरे में था, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर मैं कंफर्ट जोन में हूँ बहुत टाइम के लिए, आई एम लाइक नहीं यार, जिंदगी में कुछ मसाला चाहिए. चलो फिर से निकलते हैं. एंड वो करते करते फिर इवेंचुअली It's यू like- बीइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बिकम्स योर पर्सनालिटी. Yeah, exactly. And it's like you do not would मतलब you don't get stuck on the comfort zone. You can always come back to your comfort zone, या but you'll always know the other side of not being comfort. और मैं बहुत सच बता रही हूँ कि there are a lot of people, there are a lot of I think students, when they study or when they are focusing on a specific task, I think बहुत छोटी छोटी चीजों में you put yourself out of comfort zone, या and you have to, because competition. या Because if you want, 10 other people are ready. या They are ready to widen their experience. They are ready to know what it feels like not knowing what the next thing is, even if you're Yeah. not. तो सबसे बड़ी आई थिंक चीज हमारी जनरेशन में ये है कि एक कॉम्पिटिटिवनेस वाली चीज है. हाँ. क्या ये तब से आ रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये मेरे पीछे आ रहा है. ठीक है. तो ठीक है, अगर आ भी रहा है तो या तो हाँ, व्हाट आई फील लाइक हमारी जनरेशन में ये कॉम्पिटिटिवनेस वाली चीज है कि इवन इफ पीपल आर स्कैर्ड, बट फॉर द बेसिस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट Yeah. you'll have to. Yeah. एक तो होता है ना कि तुम अपने मन को बना रही थी, चलो वही. ठीक है मैं कर लूंगी. एक होता है कि अगर oh, मैंने shit, नहीं करा, अगर मैंने तो नहीं कुछ करा नहीं मिलेगा. तो कुछ नहीं होगा. ये वाला भी एक बहुत वैलिड वही. चीज आई थिंक फीलिंग आती है कि
सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना ही होगा, क्योंकि देयर इज नो अदर वे दैट आई कैन Option, ग्रो अप. yeah. अब इफ आई टॉक अबाउट ये, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं अपने कंफर्ट में, आई थिंक बहुत कैसे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ, कॉलेज वाज नॉट द फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय Yeah. कंफर्ट जोन. आई थिंक लाइक ऑब्वियसली घर से स्कूल जाना बचपन में कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप होना होता है, बट लाइक ऐसे बट कॉन्शियसली अवेयर नहीं हूँ मैं कॉन्शियसली उसके लिए. अवेयर नहीं, हाँ. ऑब्वियसली वो एक प्रोग्रेशन है. बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है स्कूल में काफी बार कुछ करते हुए, जैसे डांस ही करते हुए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, एकदम से अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है, मेरा भी है, I टू think. पैटर्न, यू कैन नॉट स्टिक टू व्हाट यू वांट, यू Yeah. ऑफन गेट एंड टाइम चेंजेस. तो कंफर्ट जोन से बाहर तो मुझे लगता है वही. बहुत. बट हाँ, फॉर श्योर एक वो कोविड के बाद जो पीरियड आया था, मतलब कोविड से आई थिंक there was a lot of inside development, but there was also a lot of like not so good coping mechanisms that I developed. तो उन सब से बाहर निकलना was, oh my god, amazing. मतलब I cannot imagine being that person. Yeah. I cannot. Right now, I cannot. And neither can people around me imagine what I was like. मतलब it's like ज़मीन आसमान का फर्क in that person, and I can tell you that for sure. मतलब Yeah. बहुत वैसा. तो मतलब it's like कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता होता है कि ये कंफर्ट जोन तुम्हें हार्म कर रही है. एक ऐसी कंफर्ट जोन में रहना जो तुम्हें हार्म नहीं कर रही, ठीक है, रह लो थोड़ी देर और उसके बाद अनसर्टेनिटी में जाओ. बट बहुत कंफर्ट जोन ऐसी होती है जो तुम्हें पता होता है कि तुम्हें हार्म कर रही है, तुम्हारे अच्छी नहीं हो रही, उनसे बाहर निकलना इज अ लिबरेटिंग फीलिंग. Like एक point पे being sad was a comfort zone, just not being happy was a comfort zone, Yeah. and like उससे निकलना, and then you start seeing color again, Yeah. you start experiencing life again, and it's just like Wow. why? It's like, oh, Right. this is what life is. I think एक It hits major you, I think. एक major मिले out of comfort zone ये भी है to like realize कि इट्स नॉट दैट डीप वाली चीज. लाइक मेरे को वही पहले ना. बहुत, मेरे को अभी भी काफी चीजों से बहुत डर लगता है, बट लाइक इनिशियली एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, लाइक पढ़ाई की चीजों में इट टुक मी अ व्हाइल टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं, मेरे में दिमाग है, मतलब मुझे आता है करना. हाँ, इट टुक अ For sure. व्हाइल फॉर मी टू बी लाइक कि हो जाएगा, क्या हो गया, जय माता दी. वही, मतलब बहुत, मतलब द थिंग विद कंफर्ट जोन इज कि somewhere it stops you from growing, Yeah. and it stops you from growing in such a way that you don't even realize that it is, but secretly it is. Yeah. क्योंकि खुद इमेजिन करो ना, अगर तुमको हमेशा पता है कि तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारी टीचर तुमको रोज वही क्वेश्चन दे रहे हैं, 2+2 4, 2+2 4, एक पॉइंट पे तुम दिमाग लगाना बंद कर दोगे उस प्रोसेस के लिए. Yeah. तुम हमेशा 4 लिख दोगे, और कभी किसी को और टीचर ने आकर उस पर कुछ और सम लिख दिया और तुमने 4 लिख दिया, तो गलत हो गया तुम्हारा आंसर. Yeah. आई थिंक दैट इज इट विद कंफर्ट जोन्स कि तुम उसी में रहते तुम एक पॉइंट पे अपना दिमाग लगाना ही बंद कर देते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी प्रेडिक्टेबल एंड सर्टेन, एंड तुम्हें पता है क्या आने वाला है. कुछ लाइफ हिट कर रही है, चलो जी खत्म, कोपिंग मैकेनिज्म्स ओवर, बाय बाय, गुड बाय. इट्स लाइक रियलाइजिंग कि तुम्हारे जो आज के कंफर्ट जोन हैं वो एस्टैब्लिश होने में भी तुम्हें कभी अपने पुराने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा था. तुम्हें आज जो खाना पसंद है, जो तुम्हारा कंफर्ट फूड है, क्या पता तुम्हें नई चीज ट्राई करनी पड़ी थी. एग्जैक्टली, टू लाइक लव दैट. वही. मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी में आना कैन बी स्कैरी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू गेट यूज्ड टू अनसर्टेनिटी, लाइफ इज सो फन. For sure. It's not like कि comfort zone से बाहर आ गए, oh the world turns so bright and the नहीं. nothing goes wrong. But Obviously it's like- things go wrong, things go right, that's Yeah, life. but it's like you get to experience Yeah. so much. मतलब it's like opening a book and reading the same page every day is what living in your comfort zone is. Yeah. And living beyond is like scrolling to the next page also. Yeah. ठीक है? और watching only one reel. Yeah. repeatedly क्या होगा, कुछ भी. It will stop making a difference in your head, it will stop doing anything, it will turn you numb. Yeah. And that is what a comfort zone does to you. It turns you numb, it steals the ability for you to, you know, bloom in a different situation that you might. Damn.
Yeah, Wow. I think that is it from my end. Yeah. If you want That to is a add good, anything, that is a good ending line. No pressure. somehow Gitika always ends up in these kind of situations. I don't know how, but yeah, she does. I feel like comfort zone is something जो मतलब I was personally I was very used to being in, like चाहे वो एक तरीके का मतलब रूटीन ही क्यों ना हो कि हाँ स्कूल से आए, बैग पटका, टीवी देखा, बिस्किट का पैकेट खाया, सोए, उठे, अगले दिन निकल गए, एंड लाइक जस्ट लाइक यू नो रियलाइजिंग दैट मैं जैसे मेरे स्कूल के टाइम पे फ्रेंडशिप थोड़ी उथर पुथर थी. The day I gained consciousness and I realized I don't need to be friends with the people I don't like, and I went out and I talked to people I thought were cool, and then उसके बाद से just snowballed into me trying new things constantly. और फिर कॉलेज आके तो जो बॉम्ब फटा है, हर चीज ही मैंने ट्राई करी है, जो हाथ में आ गया, जो अपॉर्चुनिटी गलती से सुन ली, मैं करूंगी, मैं नाम लिखो. Made people concerned for their safety because I wanted to try something new. Yeah, I can understand. I can relate. Yeah. Not relate, but I can understand. But उसकी वजह से मैंने बहुत sad और बुरी चीजें भी face करी हैं. But like they, you know, बहुत cliche line है कि your tough times make you stronger, but it's true. They do. You make grow yourself through stronger. what you go through. Yeah. If that makes sense. Yeah. So I think we would be sending a lot of love and strength for you to come out of your comfort zones and grow and see what the world looks like, not knowing what the next step is. I know it sounds very difficult, very scary, but if we can do it, you can do it too. Yeah. It's scary, but living the same life for the rest of your life is scarier. Too. Yeah. More scarier. Yeah. So yes, I think on this note, we would like to end today's episode. So thank you so much for watching. You can find us exclusively on YouTube in video version and Spotify in audio version with the username of @investing _ Yeah. So what? अगर मैं एक नैप से उठकर सीधा मुझे ये बोलना पड़ा है और मुझे नहीं याद है अपने ही पॉडकास्ट का यूजर नेम अच्छे से. So what, guys? It's fine, guys. It's not that deep, guys. On that note, thank you so much for listening and thank you so much for tuning in. We'll see you next week. Bye. Bye. Invisible Sting Signing out.